Welcome to my channel again. Myself Ovik Roy, your mathematics teacher, and in this video just we are going to discuss the JEE main and advanced level questions from the definite integral chapters. Okay, so in the previous lectures just I think all of you have seen the previous lectures as well, and from that lectures you had got the idea how to solve the definite integral parts and definite integral solutions also in JEE main and advanced. All the questions were very important for the JEE main and advanced level questions for 2020 and just to 21, 22, 23, 24 infinity. Okay, so for all the years, whatever the year it is, whatever the session it is, just this type of questions are very important for the JEE main and advanced level exams. Okay, so in this video, in this lectures, just we are going to solve this type of question, another type of questions from the definite integral parts, and which are very important for the competitive exams as well. Okay, so before starting the lectures as well, just let me tell you one thing, that please subscribe, like and share my channel as well, and I think all of you are enjoying the classes as well, and if you are enjoying the classes, then please subscribe and share with your friends also, so that my channel will be grown up, and after that I think I will be motivated if my channel will be grown up, if the views are coming, if the watch time is increasing incessantly and purportedly also. So if you have the clear concept, if you are getting the clear concept, if you are getting about my classes, if you are getting the positive feedback about my classes, then please share and subscribe my channel also. Okay, and if you like my videos, please push the like button as well. Okay, so subscribe करिए, subscribe के साथ ये जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि ये वीडियो आज ही अपलोड हुआ है, ये अपलोड हुआ है. ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट, एंड आई थिंक इट विल बी द लास्ट लेक्चर फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट, जस्ट temporarily. Okay, so because it is the crash course, and I think just before this year exam, this year JEE main and advanced exams, just we are not getting the sufficient time to describe and to discuss the elaborately, discuss this chapter elaborately. So just we are just I am trying to provide you the solutions regarding the definite integral chapters, and actually in this chapter most of the students are facing a lot of problems regarding the solutions as well, and that's why just I have chosen this chapter as my first topic. And after that we will move to the area bounded region, that is the application of integration chapter, and from that chapter we will solve the different level questions from the JEE mains and advanced level. Okay, so in this video just write the first question here. Okay, just write the first question. Just write the first question. Okay, if f dash k, if f dash k equals to, if f dash k equals to 0 to pi by 2, if f dash k equals to 0 to pi by 2, 2k cos square theta, 2k cos square theta d theta whole by sin square theta plus k square cos square theta. Okay, then find then the value of f k if f1 equals to 0, if f1 equals to 0. ओके, यहाँ पर f1 equals to 0 मतलब क्या है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, ऐसा होता है. ठीक है, सो यहाँ पर देखो f डैश के इक्वल्स टू ये गिवन है कि नहीं, यहां से शुरू कर दो, ये गिवन है. ओके, नाउ f डैश के इक्वल्स
2k बाहर लेके आ जाओ, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा होल बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा. ओके, नाउ 2k 0 to pi by 2. If you divide the numerator and the denominator part by cos square theta, then I think d theta by tan square theta plus k square will be there. Okay, d theta by tan square theta plus k square. Okay, now 2k 0 to pi by 2. Now how can I solve this question here? Just remember one thing. If you have any 10 expression in the denominator part, then you should have one sec square theta term in the numerator part as well, so that you can substitute the tan theta part. Okay, but unfortunately we don't have any sec square theta expression on the numerator part as well. Just we have to introduce this sec square theta part in the numerator. हम लोग को किसी भी तरह यहाँ पर sec square theta वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. Other than that, we have no other option. Okay, so here d theta into 1 is there. Obviously, in place of 1, can I write sec square theta minus tan square theta identity formula d theta by tan square theta plus k square. लिख सकते हैं हम लोग ऐसे. अब हम लोग जो है उसको पार्ट कर देंगे. 0 to pi by 2 sec square theta d theta by tan square theta plus k square. Okay, then minus 2k 0 to pi by 2. Okay, tan square theta by tan square theta plus k square d theta. हम लोगों ने पार्ट कर दिया है. नहीं, क्या फर्क पड़ता है, पार्ट तो कर सकते हैं यहाँ पर. अब जो है नेक्स्ट पार्ट, यहां पर देखो इस इंटीग्रेशन में tan थीटा को अगर मैं z सब्स्टिट्यूट करूं, लेट tan थीटा इक्वल्स टू z, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल्स टू dz, है कि नहीं. सो यहां पर लिमिट भी थोड़ा चेंज होगा, है कि नहीं. तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू अगर 0 हो, z इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा. थीटा इक्वल्स टू अगर पाई बाई 2 हो, z इक्वल्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है कि नहीं, है कि नहीं. So that means 2k from the first integral 0 to infinity, okay, dz by z square plus k square minus 2k 0 to pi by 2. ऊपर तो tan स्क्वायर थीटा है ना, एक काम करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस के माइनस के इंट्रोड्यूस कर देते हैं. नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, डी थीटा भी है. सो दैट मीन्स 2k, इसको अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फॉर्मूला, दैट मीन्स 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, दैट मीन्स दिस वन 0 टू इंफिनिटी माइनस. अगर मैं ये देखो सेकंड इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट बाय दिस, फिर उसको ऐसे करो 2k 0 टू पाई बाई 2. देखो पहला वाला जो है वो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है. और सेकंड वाला जो है प्लस ट्वाइस के 0 टू पाई बाई 2 के स्क्वायर बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर. लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो है. फिर 2 यहां पर के कैंसिल, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0. क्या तो कांस्टेंट ही है ना, तो z के जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, इंफिनिटी बाई के इंफिनिटी होगा, है कि नहीं, और 0 बाई के 0 ही होगा, माइनस 2k इंटू ये होगा पाई बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेशन डी थीटा मीन्स थीटा. अब थीटा के ऊपर रेंज क्या पुट करना है, 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 होगा आंसर. प्लस ये एक्सप्रेशन देखो, आप लोगों के पास ये एफ डैश के, देखो तो ये एफ डैश के, ये देखो एफ डैश के का आंसर, ये जो है एफ डैश के का आंसर हम लोगों ने रीअरेंज करके ये लिखा था ना, क्या हुआ था, 2k इंटू 0 टू पाई बाई 2
डी थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर 2k है कि नहीं 2k बाई देखो तो यहाँ पर ये 2k इंटू दिस पार्ट तो हम लोग देखो तो यहाँ पर के स्क्वायर इंटू ये पार्ट को एफ डैश के लिख सकते हैं कि नहीं देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ डैश के इक्वल्स टू दिस पार्ट के स्क्वायर को बाहर लेके आ जाओ 2k को अंदर लेके चले जाओ तो के स्क्वायर आ जाएगा और 2k बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कैन बी रिटन एज एफ डैश के है कि नहीं लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं कि नहीं तो यहां पर ये जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है किसका आंसर निकल रहा है एफ डैश के का याद रखना तो यहां पर जो है एफ डैश के इक्वल्स टू 2 इंटू tan inverse infinity that means pi by 2 tan inverse 0 means 0 2 cancel that is minus k pi and then plus k square f dash k है कि नहीं ठीक है अब f dash k वाला पार्ट जो है एक साथ लेके आएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं तो देखो तो f dash k कॉमन लेंगे लेने के बाद क्या आ रहा है 1 माइनस के स्क्वायर आ रहा है और इधर जो है 2 कैंसल पाई माइनस के पाई सो एफ डैश के यहां पर 1 प्लस के 1 माइनस के यहां पर पाई कॉमन 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के कैंसल एफ डैश के इक्वल्स टू पाई बाई 1 प्लस के पाई बाई 1 प्लस के है कि नहीं आपको अभी किसका वैल्यू निकालना है किसका वैल्यू निकालना है यहां पर आपको निकालना है एफ के का वैल्यू है कि नहीं एफ के का वैल्यू आप लोगों को निकालना है यहां पर तो निकला एफ डैश के तो एफ डैश के दैट मींस डिफरेंशिएशन किया गया तो डिफरेंशिएशन से एफ डैश के से एफ के में रिटर्न करना है मुझे तो रिटर्न हम लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन को कैसे हटाएंगे डिफरेंशिएशन जो है उसको हम लोग कैसे हटाएंगे बोलो कैसे हटाएंगे एफ डैश के से हम लोग एफ के में कैसे आएंगे यही है यहां पर क्वेश्चन आपका है कैसे आएंगे बोलो बोलो एफ डैश के से यहां पर एफ के में कैसे आएंगे ऑब्वियसली मुझे यहां पर इंटीग्रेशन यूज करना है विदाउट दिस इंटीग्रेशन वी कांट actually back to the fk value so that means taking integration on both sides taking integration on both side with respect to k हम लोगों को यहां पर एफ डैश के इक्वल्स टू पाई बाई 1 प्लस के है अब एफ डैश के से एफ के में अगर मुझे बैक करना है तो एफ डैश ये डैश को यहां से ओमिट करना पड़ेगा दैट मींस डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन को हटाना एक कब पॉसिबल होता है जब एंटी डिफरेंशिएशन यूज करें दैट मींस एंटी डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटीग्रेशन यूज करना है तो यहां पर देखो बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन यूज करूं विद रेस्पेक्ट टू के तो ये हो जाएगा एफ के उधर हो जाएगा क्या पाई बाई 1 प्लस के डी के है कि नहीं सो दैट मीन्स पाई लॉग 1 प्लस के प्लस सी बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रल है प्लस सी तो देना पड़ेगा आपको अब नाउ सिंस एफ ऑफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है कि नहीं दैट मीन्स के का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो एफ ऑफ के का आंसर क्या निकलेगा 0 निकलेगा दैट मीन्स यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 देकर रख दो फ्रॉम 1 क्या है फ्रॉम 1 क्या है इफ k इक्वल्स टू 1 तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू पाई लॉग 2 प्लस सी तो f ऑफ 1 तो 0 होता है दैट मीन्स पाई लॉग 2 प्लस सी दैट मीन्स सी का वैल्यू क्या है माइनस पाई लॉग 2 तो बस इक्वेशन नंबर 1 में जाके बिठा दो सी का वैल्यू सो फ्रॉम 1 एफ के इक्वल्स टू क्या निकला एफ के फ्रॉम 1 ये पाई लॉग
1 plus k minus pi log 2. This is the answer actually. Okay? Huh? This is the answer. So now, हो गया? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? नाउ नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. जाओ. I equals to 0 to pi. I equals to 0 to pi. हो गया? मिटा दें उसको. मिटा दे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मिटा दे. मिटा दे. ये पॉज करके देख लो. पॉज करके देख लो. बैक करके देख लो. ये वीडियो लेक्चर्स में यही प्लस पॉइंट होता है, हैं? आप बैक भी कर सकते हैं. लाइव क्लासेस में तो आप बैक नहीं कर सकते ना उसको. ठीक है. फिर इंटीग्रेशन 0 to pi. दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. ओके. फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू. वैल्यू निकालना है आपको. I इक्वल्स टू क्या है? 0 to pi x 10x by sec x plus 10x. Sec x plus 10x dx. है नहीं? सो I इक्वल्स, अब sec 10 लेके डील करें क्या? एक काम करते हैं, सब sec 10 को sin cos में चेंज कर देते हैं. x sin x by cos x और उधर 1 by cos x प्लस sin x by cos x. इजी हो जाता है. साइन cos में कैलकुलेशन करना तो इजी होता है ना. अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x कॉमन एलसीएम आता है. दैट मींस x sin x by 1 प्लस sin x dx. ये I होता है. अब देखो यहां पर जो है लिमिट का जो फॉर्मेशन है 0 to a फॉर्मेशन में है ना. दैट मींस 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a minus x dx होता है कि नहीं? सो दैट मींस 0 to pi x के जगह में क्या पुट करना है? पाई माइनस एक्स. पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx. है कि नहीं? ठीक है. फिर I इक्वल्स टू 0 to pi पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है. ये भी साइन एक्स ही होगा. dx ये है अनदर I. नाउ I प्लस I इक्वल्स टू 0 to pi. आई थिंक x साइन x और ये x साइन x कैंसिल हो जाएगा. बाकी रहेगा पाई साइन x बाई 1 प्लस साइन x dx. सो देयर इज 2i इक्वल्स टू पाई बाहर लेके आ जाओ. 0 to pi साइन x बाई 1 प्लस साइन x dx. ठीक है. अब इसको कैसे करना है? अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है? बोले तो कैसे करना है आपको इसको सॉल्व? ऊपर जो है साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है. दो प्रोसेस से यहां पर कर सकते हैं. ठीक है. एक प्रोसेस तो ये है कि प्लस 1 माइनस 1 से ऊपर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं. 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx. 2i इक्वल्स टू पाई फिर 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स एक पार्ट dx माइनस पाई 0 to पाई 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx. है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं ना. अब फर्स्ट इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो जाता है कि नहीं? फर्स्ट इंटीग्रेशन में देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाता है. डिफरेंस 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई dx माइनस पाई 0 to पाई. अब याद रखना डिनोमिनेटर में अगर कोई भी साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सप्रेशन रहे सिंगल, नॉट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, विथ पावर 1 लिनियर फॉर्मेशन रहे साइन और कॉस का और न्यूमरेटर खाली रहे, तब आपको साइन एक्स के जगह में एक फॉर्मूला यूज करना है. वो होता है 2 tan x by 2 by 1 प्लस
10 square x by 2, that is 2i equals to pi, यहाँ पर x 0 to pi minus pi, ये 0 to pi, 1 plus 10 square x by 2 by 1 plus 10 square x by 2 plus 210 x by 2 है कि नहीं। एलसीएम किया है और क्या किया है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स 2i equals to pi into pi minus pi 0 to pi, ऊपर ये sec square x by 2 है और नीचे क्या आएगा, शायद देखो f प्लस भी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में बन गया ये। दैट मीन्स 1 plus 10 x by 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2i equals to pi square minus pi। अब अगर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करें, यहाँ पर देखो इस सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों ने इतना हंगामा यहाँ पर किया है, ये पूरा 10 में चेंज किया है। यहाँ पर लेट 10 x by 2 को अगर z ले लें, दैट मीन्स sec square x by 2 into half dx equals to dz, वो x by 2 का डिफरेंशिएशन हाफ आएगा। सो दैट मीन्स sec square x by 2 dx equals to 2 into dz है कि नहीं। और लिमिट भी थोड़ा चेंज होगा, अगर यहाँ पर x 0 हो तो z भी 0 होता है, अगर x इक्वल्स टू पाई हो z इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है कि नहीं। 10x by 2 है ना। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये होगा 2 इंटू डी जेड बाई 1 प्लस जेड होल स्क्वायर है कि नहीं। सो दैट मीन्स 2i पाई स्क्वायर माइनस पाई, 2 पाई 2 भी बाहर आ जाएगा, 1 प्लस जेड होल टू दी पावर, यहां पर -2 है कि नहीं। 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी है कि नहीं, ठीक है। अब लिमिट अगर बिठा दी यहां पर 2i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस पाई, पहले आपको फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस जेड -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, और लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी। फिर 2i पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, यहां पर एक -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर 1 बाई 1 प्लस जेड, 0 टू इंफिनिटी है कि नहीं। सो दैट मीन्स 2i पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई, यहां पर पहले इंफिनिटी पुट करना है जेड की जगह, तो दैट मीन्स 1 बाई इंफिनिटी आएगा। देखो 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0 है, माइनस 1 बाई 1 प्लस 0, so that means 2i equals to pi square minus 2 pi है कि नहीं। ये -1 है ना, तो that means i equals to pi common, pi by 2 pi minus 2 is the answer। i equals to pi by 2 into pi minus 2 is the final answer। okay ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, देखो if f square x equals to 0 to x, मतलब ऐसे लिखना है, if f square x equals 0 to x ft cos t by 1 plus sin t dt, 1 plus ना 2 plus, okay 2 plus sin t dt ठीक है। That means ft into cos t by 2 plus sin t dt and 0 to x is there, okay, and fx not equals to 0, fx not equals to 0 and f0 equals to 0, f0 equals to 0, then find f dash x, मतलब f dash x का मेरा find मतलब यहाँ that means here I am giving this find, but in the entrance exam just the value of f dash x is options will be there,
Okay, so here given f square x equals to 0 to x f t cos t by 2 plus sin t, okay, dt हो गया. अच्छा, here f square x is given, but we need to find f dash x. That means differentiation should be taken here, should be chosen here. Differentiation, without differentiation f dash x cannot be introduced. Okay, so we have to introduce this differentiation with respect to x on both sides using differentiation with respect to x. So ddx of f square x, and here the integration sign is given. Okay, integration sign is given here, but we are taking the differentiation. We are taking the differentiation here. Okay, so what will be the actually the differentiation? Okay, just tell me. Here integration sign will be omitted. Integration sign will be omitted. Okay, after omitting this integration sign, the highest limit, that means the upper limit, should be put on this expression. That is f of x cos x by 2 plus sin x. Only this. Okay, and the lowest limit, if you put the lowest limit here, 0. That means f of 0, I think it is given, f of 0 is what? 0. So if you put 0 here, then f of 0 will be there. F of 0 equals to 0. The whole expression will be 0. Okay, f of 0 है कि नहीं? तो f of 0 आपने पुट किया तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा ना. तो दैट मीन्स माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. लिखने का जरूरत नहीं है. तो दैट मीन्स सिर्फ अपर लिमिट ही यहाँ पर आपको लिखना है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन, एक काम करो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखना है, टेक यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड. ऑन बोथ साइड लिख लो, ऑन बोथ साइड. ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिखना है. ठीक है, सो यहां पर एफ स्क्वायर एक्स का डिफरेंस 2fx इंटू एफ डैश एक्स होगा, है कि नहीं? किसी के रेस्पेक्ट में भी करो, एफ स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स होगा. ठीक है, तो यहां पर एफ स्क्वायर एक्स है तो 2fx, फिर fx का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, है कि नहीं? फिर ये तो ये हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और अपर लिमिट बिठाना है माइनस लोअर लिमिट बिठाना है. तो अपर लिमिट टी के जगह में x बिठाने से तो ये होता है ना पूरा एक्सप्रेशन, माइनस अगर मैं टी के जगह 0 बिठाऊं, f of 0 इंटू दिस एक्सप्रेशन cos 0 by this whatever it is, but f0 क्वेश्चन में गिवन है 0. So if you put f0 equals to 0, then I think the whole expression will be 0. So I think for the lowest limit the term should not be written. Minus 0 is there, minus 0. Okay, now according to the question, fx not equals to 0. 0 नहीं है fx. That means both side fx को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. अगर कोई भी एक्सप्रेशन नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोथ साइड कैंसिल कर सकते हैं ना. सो दैट मीन्स 2 इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स, है कि नहीं? सो दैट मीन्स f डैश x इक्वल्स टू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स, एक हाफ भी आएगा. आपको अभी क्या निकालना है? फाइंड एफ डैश एक्स निकालना है. तो एफ डैश एक्स तो निकल गया, फाइंड एफ डैश एक्स निकल गया. तो एफ डैश एक्स इट मीन्स 1/2 cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स. एफ डैश एक्स निकल गया. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना ये सब, है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ठीक है, हो गया. नाउ नेक्स्ट आओ, इंटीग्रेशन -1 to half. इंटीग्रेशन -1 to half. इंटीग्रेशन -1 to half
इंटीग्रेशन -1 to half e to the power x into 2 minus x square, e to the power x into 2 minus x square, 1 minus x root over 1 minus x square, root over 1 minus x square. ठीक है, dx. Okay, just you have to find the value here. Yeah, the options will be given, just you have to take the right options. Okay, so यहां पर I equals to, है कि नहीं? So -1 to half e to the power x, 2 minus x square is there, no? So 2 minus x square, it can be written as 1 plus 1 minus x square by, लिख सकते हैं ना ऐसे, है, होल बाय 1 minus x root over 1 minus x square dx. -1 to half e to the power x plus e to the power x 1 minus x square, whole by 1 minus x root over 1 minus x square. लिख सकते हैं ना ऐसे dx, देखो तो, फिर -1 to half e to the power x अगर कॉमन ले, क्या आ रहा है, 1 by 1 minus x root over क्या आ रहा है, 1 minus x square plus 1 minus x square root over क्या, 1 minus x square. देखो तो ऐसा आ रहा है कि dx तो है बाहर. So that means -1 to half e to the power x बाहर रहने दो. ये जो एक्सप्रेशन है 1 minus x root over 1 minus x square प्लस, तो यहां पर अगर मैं कैंसिल करूं, तो यहां पर 1 minus x है ना, 1 minus x है. सो यहां पर होगा 1 minus x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे एक 1 minus x रह जाएगा, dx है, ठीक है नहीं? फिर -1 to half e to the power x रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर को अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में सजाऊं, a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज, उसके बाद कैंसिल होगा. कैंसिल होने के बाद देखो तो ये एक्सप्रेशन आता है कि नहीं, 1 plus x बाई रूट ओवर 1 minus x प्लस 1 by 1 minus x रूट 1 minus x स्क्वायर dx. देखो तो ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि नहीं, आता है ऐसा एक्सप्रेशन. अब जो है हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होता है, अगर इंटीग्रेशन e to the power x fx plus f dash x रहे dx, that means पहले first function will be there and the first function differentiation will be in the second term. Then you can write e to the power x fx plus c directly. Okay, this is the formation actually. This is the definite or indefinite integral property. So according to this property, just we have to figure out where this concept can be used. Here fx is there. If I take x, fx is there. Okay, so we have to check whether the differentiation of this part, will it be this? We have to verify. तो एक काम करते हैं, राफ में थोड़ा एक कर लेते हैं, ठीक है. ddx ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स, उसका करके देखो तो क्या होता है, u बाई v फॉर्मेशन, 1 माइनस एक्स फिर रूट ओवर 1 माइनस एक्स, फिर 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स, और इधर 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स, है कि नहीं? सो दैट मीन्स 1 माइनस एक्स और यहां पर 2 भी एक आएगा
और √1 - x² भी रहेगा, ठीक है। फिर उधर ये होगा 1 - x हो जाएगा और इधर -1 + x हो जाएगा, है कि नहीं। सो यहां पर ये 1 - x √, एलसीएम करेंगे। यहां पर एलसीएम करके देखो क्या हो रहा है, थोड़ा यहां पर एलसीएम करके देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना। u/b, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 √x, 2 √1 + x एंड √1, ये -1 होगा। एक 1 - x का डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं मिल रहा, तो -1 होगा ना। ये √1 - x, 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 होगा ना, तो दैट मींस ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x √, ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - x, फिर +1 + x, x कैंसिल, 2 होगा, 2 कैंसिल, यस आ गया। देखो fx, दैट मींस इसको अगर मैं fx लूं, अगर ये fx होता है तो ये होता है f'(x). तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिख लिया है? क्या है होता है प्रॉपर्टी? e⁻x, इंटीग्रेशन साइन रहेगा, fx + f'(x) dx अगर रहे, डायरेक्टली आप लोग आंसर जो है e⁻fx + c लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहां पर भी सेम, यहां पर भी आपको e⁻x, fx क्या है 1 + x/1 - x, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, दैट मींस +c should not be written, -1 to ½ Now you can put the limit, you will get the final answer. Final answer, just put the limit here, upper limit minus lower limit, कंटिन्यू करो उसको, आ जाएगा आपका, आ जाएगा नहीं आंसर होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, x sin x into cos x। देखो हो गया ये x sin x इंटीग्रेशन 0 to π/2 x sin x into cos x by sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx। अब इसको कैसे करना है? i = डेफिनेट इंटीग्रल है, तो i = तो लिखना ही है आपको, इसका आपको आंसर निकाल के दिखाना है। कैसे होता है यहां पर, ये याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर कोई इवन नंबर पावर वाला साइन और कॉस का एक्सप्रेशन रहे, इवन नंबर पावर वाला अगर कोई साइन और कॉस का एक्सप्रेशन रहे, तो आपको देन यू हैव टू डिवाइड the numerator and the denominator part by the cosine expression, and whatever the power on this cosine expression, that should be same. Just in the denominator you can see cosine expression is there, cos to the power 4. You have to divide the numerator and the denominator part by cos to the power 4. Remember this thing. If you have the even number power in the denominator part, sine or cos expression will be there. ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट द न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में अगर साइन और कोसाइन के एक्सप्रेशन रहे विथ द इवन नंबर पावर, देन यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाय द कोसाइन एक्सप्रेशन, whatever the cosine expression will be in the denominator part with the same power. That should be taken. So that means it is our second question. Okay, so here I equals to if you use the property here 0 to a, that means π/2 minus x sin π/2 minus s, कौन सा प्रॉपर्टी? 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx, है कि नहीं? That means π/2 minus x cos π/2 minus x whole by sin to the power 4 π/2 minus x plus cos to the power 4 π/2 minus x dx. So I equals to 0 to π/2, ये π/2 होगा, π/2 minus x cos x sin x by cos to the power 4x plus sin to the power 4x dx. It will be another I. Now I plus I plus I
इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2। आई थिंक दिस x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x sin x cos x माइनस x sin x cos x कैंसिल रहेगा, सिर्फ पाई बाई 2 sin x cos x बाई sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx। Now if you have any even number power expression with the sin and cos expression in the denominator part, then you should divide the numerator and the denominator part by the cosine expression whatever you have in the denominator part, including the power also. In the denominator part that you can see cosine expression is there with the power 4. So that means you should divide the numerator as well as the denominator part by cos to the power 4 as well. Okay, so just if you divide, pi by 2 is there, 0 to pi by 2, cos to the power 4 से divide करना है कि नहीं, so that means sin x cos x by cos to the power 4x, that means 10 to the power 4x plus 1 dx. So that means twice I equals to pi by 2, 0 to pi by 2, 10x इंटू ये एक एक कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं, 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, 10x सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 10 to the power 4x plus 1 dx, ऐसा होगा है कि नहीं। So that means twice I equals to pi by 2, 0 to pi by 2, 10x sec square x dx, और 10 to the power 4 जो है उसको हम लोग 10 square x whole square plus 1 लिख सकते हैं कि नहीं, twice I, उसके बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट यहां पर क्या होगा, 10 square x को कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो एक 10x sec square x है, 10x sec square x है ना, तो अगर आपको न्यूमरेटर में 10x और sec square x लाना है तो आपको 10 square x को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सिर्फ आप 10x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ sec square x dx आएगा। So what about the 10x? Whatever the 10x term in the denominator, numerator part, that should come also. Okay, so that means 10 square x will be better. Okay, so if you take the substitution here, 10 square left, 10 square x equals to z. That means 2 10x sec square x dx equals to dz. I think 10x sec square x dx equals to dz by 2. Limit will be changed. Limit change होगा यहाँ पर, तो शायद 0 to infinity होगा, है कि नहीं, 0 to infinity होगा, है कि नहीं। सो यहाँ पर 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो रहेगा, और ये होगा 0 to infinity, क्योंकि x 0 हो तो इसका आंसर भी 0, पाई बाई 2 हो तो इन्फिनिटी होगा, 0 to infinity। ऊपर आएगा dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, एक बाई हाफ रहेगा, ये बाई हाफ 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, दैट मीन्स पाई बाई 4 tan inverse z, 0 to infinity. Just now you can solve the question as well. So pi by 4 tan inverse infinity minus tan inverse 0. That means pi by 4 pi by 2. It is pi square by 8. Pi square by 8. So I equals to pi square by 16. Pi square by 16 is the final answer. Pi square by 16 is the final answer. Okay? ठीक है? Now, the next part.
नेक्स्ट पार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल्स टू x fx a टू b माइनस a टू b x into f dash x dx, x into f dash x dx. Then find क्या फाइंड करना है अभी, जो a टू b fx dx, a टू b fx dx प्लस a टू b f in प्लस f of a to f of b, f inverse x of dx इक्वल्स टू व्हाट, आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आपको निकालना है इसका आंसर, है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, नाउ गिवन पार्ट लिखो, गिवन a to b fx dx इक्वल्स टू, इस पे अगर लिमिट में, अच्छा यहां पर पहले गिवन पार्ट लिख लो, x fx a to b माइनस a to b x f dash x dx. नाउ a to b fx dx, यहां पर हम लोग अगर लिमिट बिठा दें, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस a f of a, लिमिट बिठा देते हैं उसको, और क्या करें अभी, अब इंटीग्रेशन भी उसका हो गया है तो ऑलरेडी, अब सिर्फ लिमिट बिठाना है आपको, तो लिमिट बिठा दीजिए, माइनस उसको एज इट इज सेम रखिए, उसको तो कुछ नहीं करना है अभी. निकालना क्या हम लोग को, ये तो एक्सप्रेशन एज इट इज सेम है, दैट मींस ये एक्सप्रेशन को हम लोग को टच भी नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, लाना क्या है मुझे, एफ इनवर्स एक्स, है कि नहीं, एफ इनवर्स एक्स लाना है. नाउ इन दिस इंटीग्रेशन एक काम करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, फ्रॉम 1 लिख देते हैं, फ्रॉम हियर a to b x f dash x dx. Let fx equals to z. Let fx equals to z, लिख सकते हैं ना उसको, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि मुझे f dash x चाहिए. अब बोथ साइड अगर डिफरेंशिएशन करें, f dash x dx equals to dz, f dash x dx equals to dz. अच्छा, यहां से x equals to f inverse z लिख सकते हैं ना. तो यहां पर लिमिट भी तो थोड़ा चेंज होगा ना, यहां पर अगर x यहां पर a है तो z होगा f of a, x इक्वल्स टू b होगा तो f of b होगा, है कि नहीं. तो यहां पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है, यहां पर ये जो कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, f of a to f of b, इस x के जगह में f इनवर्स z देखो, और f dash x dx के जगह में तो dz लिख देंगे, है कि नहीं. तो ये जो बात है, मैंने बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप लोग जो है लिमिट सेम रख के, ये इंटरवल सेम रख के, ये वेरिएबल जो है आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फ्रॉम 1 चले जाओ, फ्रॉम 1 क्या है, a टू b fx dx इक्वल्स टू b इंटू f of b माइनस a इंटू f of a माइनस a. इसका आंसर क्या आया, f of a to f of b f inverse x dx. इसको इधर लेके आ जाओ. सो इंटीग्रेशन a to b fx dx प्लस f of a to f of b
एफ इनवर्स एक्स dx इक्वल्स टू आंसर क्या आया b of f of b minus a of f of a. This is the answer. ठीक है, अगेन आंसर इजी है ना क्वेश्चन, कितना इजी है कि नहीं? ठीक है, फिर आओ और एक क्वेश्चन आओ 0 to 1 sin inverse root x by x square minus 1 plus 1 dx. That means you have to find the value here. Integration 0 to 1 sin inverse root x by x square minus x plus 1. Integration 0 to 1 sin inverse root x by x square minus x plus 1 dx. ठीक है, यहां पर तो फॉर्मेशन क्या आया 0 to a फॉर्मेशन I इक्वल्स टू, सो यहां पर भी I इक्वल्स टू क्या लिखना है 0 to 1 f of a minus x, that means root 1 minus x by ये x के जगह में 1 minus x होल स्क्वायर minus of 1 minus x plus 1 dx. That means 0 to 1 sin inverse root 1 minus x तो है, नीचे जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं उसका क्या हालत जो है वो आता है 1 minus twice x plus x square minus 1 plus x plus 1 cancel 0 to 1 sin inverse 1 minus x by x square minus x plus 1. अरे सेम ही आ गया यहाँ पर, है कि नहीं? तो यहां पर एक चीज हम लोगों को एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोग के दिमाग में तो आना चाहिए ना, सिर्फ मेरे दिमाग में ही आएगा क्या है? आप लोगों का दिमाग भी तो यूज करना है आपको. You have to use your brain also. All the time just I am using your brain. How is it possible? My brain will be collapsed. Okay? Now, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स रूट क्या है 1 माइनस एक्स, इसको अगर मैं थीटा लूं, ठीक है, ये राफ में करूं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा होता है. सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 minus sin square theta. That means 1 minus x. That is 1 cancel x. That means cos square theta equals to, that means cos theta क्या है root x, तो theta equals to क्या होता है cos inverse root x होता है ना. So that means theta equals to sin inverse root 1 minus x और theta equals to cos root x, दोनों एक ही बात है. That means 0 to 1 इसके जगह में हम लोग cos inverse रूट एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx लिख सकते हैं कि नहीं? नाउ इट इज योर अनदर आई. ओके, नाउ आई प्लस आई क्या करें 0 to 1 साइन इनवर्स रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 cos inverse root x by x square minus x plus 1 dx. 2i equals to 0 to 1 sin inverse root x plus cos inverse root x by x square minus x plus 1 dx. 2i equals to 0 to 1 inverse trigonometry में sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. साइन इनवर्स एक्स हम लोगों ने ये प्रूफ भी करके दिखाया था मैंने,
कैसे होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। आई थिंक लेक्चर नंबर 5, थोड़ा देखो उसको। ठीक है, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 2i इक्वल्स टू, ये पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 1 by x square minus x plus 1. Up in the denominator part, the quadratic formation is coming. Then you have only one process, and that is method of completing square. That means the denominator part should be expressed in the form like a plus b whole square or a minus b whole square, and this formation is called the completing square. And you have to introduce the completing square in the denominator part as well. That is 2i pi by 2 0 to 1 dx by x square minus 2 into x into half plus half square minus half square, and this plus 1 is also there. That means pi by 2 0 to 1 dx by x minus half whole square, और ये हो जाएगा माइनस 1 by 4 प्लस 1. So 2i equals to pi by 2 0 to 1 dx by x minus half whole square माइनस प्लस हो जाएगा प्लस √3 by 2 whole square, है कि नहीं? So I think 2i equals to just pi by 4. You can write 0 to 1 dx by, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, और क्या है उसमें, i equals to pi by 4 tan inverse 1 by a, तो है 1 by a, that is 1 by √3 by 2 tan inverse x by a, ये 0 to 1 So that means I equals to, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, that means pi by 2√3, और यहां पर tan इनवर्स पहले 1 अगर बिठाएं क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस हाफ, that means हाफ by √3 by 2, और यहां पर बिठाएंगे 0 बिठाएंगे तो माइनस हाफ by √3 by 2. That means I equals to pi by 2√3. ये 2 cancel, 1 by √3. 1 by √3 means 10 pi by 6. 10 30 डिग्री. tan इनवर्स और 10 pi by 6. 10 cancel, सिर्फ रहेगा pi by 6. माइनस, यहाँ पर तो माइनस साइन आ गया, यहाँ पर 2 cancel, माइनस 1 by 3. तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन तुम बाहर ला सकते हो, प्लस यहां पर भी पाई बाई 6 लिख दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कर लेते हैं, पाई बाई 2√3, ठीक है नहीं? तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6 3. दैट मीन्स आई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 6√3, पाई स्क्वायर बाई 6√3. फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कर लेते हैं. यहाँ पर तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया कि इस क्वाड्रेंट में करना है, उस क्वाड्रेंट में करना है, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है कि नहीं? ओके, ठीक है, हो गया. फिर आज रहने देते हैं यहाँ पर ही, टायर्ड हो गई हूँ मैं थोड़ा. ओके, गर्मी बहुत है, कैलोरी जो है वो ज्यादा निकल जा रहा है कि नहीं? हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एरिया बाउंडेड रीजन में चले जाएंगे. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 1-2 क्वेश्चंस तो मिनिमम तो आएगा ही यहाँ से. ठीक है, so these chapters are very important. Only those chapters will be solved in this session which are very important and very actually tough with respect to the other chapters also. Okay, so at first
and that's why just I have started by taking the tough chapters at a stretch. Okay, so इस वीडियो में यहाँ तक ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे. डिफरेंट चैप्टर भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशंस भी करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे. ओके, देन एक्चुअली जस्ट टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे isolated and stay at home as well. Okay, and if you like my videos, if you like my lectures, and if you like me, then please subscribe, like and share. Okay, साइड में रेड कलर के एक बटन है, उसको क्लिक करना है, फिर बेल आइकन को भी क्लिक करना है. फिर उसके बाद अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर्स तो आपको ये जो साइन है ना उसको भी क्लिक करना है. ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद.